Hello everyone. Let's start May-June 23 variance 42. The duration of this paper is 2 hours. We need to cover all the question and the total marks for this paper is 100. Okay. Uh, let's see what we have in this. Group 2 carbonate decomposes when heated to form metal oxide and carbon dioxide. काफी डिटेल से किया हम लोगों ने ये क्लास में. इसका मैकेनिज्म भी हमने बहुत डिटेल से करवाया था क्लास में. आपको A1 में भी करवाया है, A2 में भी करवाया है. अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये कन्वर्ट होगा मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. Suggest mechanism for the decomposition of the carbonate ion by adding two curly arrows. और two curly arrows का जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा नोट कीजिएगा. हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हैज अ नेगेटिव चार्ज सो इट हैज अ लोन पेयर. ऑब्वियसली ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा एंड एज अ रिजल्ट कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक बॉन्ड फॉर्म होगा. जैसे ही बॉन्ड फॉर्म होगा, to satisfy the number of bonds of carbon, ऑक्सीजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड. तो जब ये ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड चला जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा तो टेक्निकली ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड में. और यही बात हमने क्लास में भी डिस्कस की भी है, राइट. In part 2, describe the variation in the thermal stability of group 2 carbonate. Explain your answer. 3 marks का part है ये. Down the group. Thermal stability increases, meaning more temperature is required for thermal decomposition. And the reason is because down the group ionic radius increases, so charge density and polarization decreases. If polarization decreases, then it means cation cannot distort the electrons of carbonate ions easily. Okay. Now the next is define lattice energy. Lattice energy is basically the energy released when 1 mole of ionic solid is formed from its gaseous cation and anion.
gaseous cation and anion under standard condition. Okay. Next part is the lattice energy of group 2 carbonates becomes less exothermic down the group. And that's a perfect statement because lattice energy is exothermic. And down the group, ionic radius increases, so electrostatic attraction between cation and anion becomes weaker, and so lattice energy becomes less exothermic. That's the right statement, okay? Next is lattice energy of group 2 oxides also becomes less exothermic. That's also correct one. और उसकी रीजन ये है कि डाउन द ग्रुप जब आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है तो कैटायन और एनायन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो वीकर हो जाती है. जब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वीकर होगी तो ऑब्वियसली लैटिस एनर्जी भी लेस एक्सोथर्मिक होगी. दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज delta H lattice of magnesium carbonate and delta H lattice of metal oxide change by different amounts going down the group. Suggest how the standard enthalpy change of the decomposition of reaction for group 2 carbonate changes down the group. One more thing जो बहुत ही important है मेरी नजर में वो ये है कि enthalpy change of decomposition, that is the thermal decomposition. The thermal decomposition is always endothermic. Okay. अगर मैं थोड़ा सा आपको याद कराऊं जो मैंने क्लास में डिस्कशन की थी आप लोगों के साथ, मैंने कहा था जनाब ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, स्टोनियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट. ठीक है. So when we move from top to bottom in a group, ionic radius increase होगा, obviously charge density decrease होगी, जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली लैटिस एनर्जी क्योंकि चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है तो लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप लेस एक्सोथर्मिक हो जाएगी. ओके. तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बेरियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए कम एनर्जी चाहिए. सो अगर थर्मल डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब इसको डिकम्पोज करने के लिए आई नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी. दैट मींस इट इज मोर एंडोथर्मिक. और इसको डिकम्पोज करने के लिए आई नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. इसका मतलब इट इज लेस एंडोथर्मिक. सो पहला पॉइंट जो मैं जज कर सकता हूं वो यहां से कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ डिकम्पोजिशन फॉर ग्रुप 2 कार्बोनेट्स becomes more endothermic down the group. Okay. So हम यहां से फर्स्ट स्टेटमेंट ये ले लेते हैं. Down the group standard enthalpy change of decomposition of group 2 carbonate increases or more endothermic becomes more endothermic. ये मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया.
Okay. Now the next is explain your reasoning in terms of relative size of the ions and relative changes in the lattice energy downward. अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह से होगा। एंड ऑब्वियसली समझाने के लिए मुझे एनर्जी साइकिल भी बना के दिखानी होगी। सो हम एनर्जी साइकिल की भी बात कर लेते हैं। आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस, सो व्हाट वी कैन डू इज कि मैं यहाँ से एक पेज ले लेता हूँ। देखिए, यू गाइस हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये है मेरे पास मेटल कार्बोनेट, और जब मैं इस मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज करूंगा तो it's going to be converted into metal oxide and carbon dioxide. Okay, and obviously guys, मैं मेटल कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच डिकम्पोजिशन, राइट, ऑफ मेटल कार्बोनेट। अब इस मेटल कार्बोनेट की फॉर्मेशन की भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली कि आपके पास गैशियस मेटल आयन हो और गैशियस कार्बोनेट आयन हो, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो, और कंबाइंड होकर ये कन्वर्ट हो जाए मेटल कार्बोनेट में, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा एच लैटिस। ठीक है, और लैटिस का है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का। अच्छा, अब आप नोट करें, यहां से यहां भी तो जा सकता है रिएक्शन, लेकिन जब जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ दो स्टेजेस इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला है डेल्टा एच लैटिस ऑफ मेटल ऑक्साइड। जाहिर सी बात है यहाँ से ऑक्साइड मिलेगा, और मुझे कैसे मिलेगा ऑक्साइड? ये मैकेनिज्म हो रहा होगा ना, इस मैकेनिज्म की वजह से मुझे ऑक्साइड मिल रहा होगा। वो ऑक्साइड इस मेटल आयन के साथ कंबाइंड होगा, और कंबाइंड होकर मेटल ऑक्साइड बनाएगा, विच इज गोइंग टू बी द लैटिस ऑफ MgO, सॉरी, मेटल ऑक्साइड। और इसकी डिकम्पोजिशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ आपके पास डेल्टा एच डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट आयन है। अच्छा, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट आयन इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा नहीं, और उसकी रीजन ये है कि कार्बोनेट का जो साइज होता है वो एज कम्पेयर टू ऑक्साइड बहुत बिगर होता है। तो जाहिर सी बात है वो कार्बोनेट का जो फैक्टर होगा डिकम्पोजिशन को, वो इतना ज्यादा मैटर करेगा नहीं एनर्जी की टर्म। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एच डी, डी का मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ MCO3 प्लस डेल्टा एच लैटिस ऑफ, oh my goodness, this is MO लिखा हुआ है, this must be MCO3. Okay, then minus delta H lattice of MO and minus delta H D of carbonate equals to 0. I need to find out this value. ये मालूम करने के लिए कह रहा है ना मुझसे, जो मैंने ये स्टेटमेंट लिख के दिया भी है आपको, सही। सो अगर मुझे ये मालूम करना हो तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा एच डी ऑफ मेटल कार्बोनेट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डेल्टा एच लैटिस ऑफ MO प्लस प्लस देन माइनस delta H lattice of MCO3 and then plus delta H D
एच डी ऑफ कार्बोनेट, ठीक है। तो मैं आपको कह चुका हूँ ऑलरेडी कि मुझे इसका फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कार्बोनेट का रेडियस बहुत बड़ा होता है, तो एनर्जी का इतना बड़ा इम्पैक्ट आता नहीं है, कोई खास सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब सारी स्टोरी जो है वो इन दो से रिलेटेड है। अब जाहिर सी बात है, मैंने अभी कहा आपको कि कार्बोनेट का जो रेडियस है वो बिगर है, बिगर रेडियस की वजह से एनर्जी का इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आप सब जानते हैं कि ये भी डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, और ये भी डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। अच्छा, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, बट this decreases more significantly than this one, and reason again same, कि कार्बोनेट का रेडियस बड़ा होता है, तो decreases down the group more significantly, सही है जी, than MCO3. So that is the whole logic behind this. और जाहिर सी बात है ये डिक्रीज होगा मोर सिग्निफिकेंटली, और ये डिक्रीज नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और, ये एंडोथर्मिक क्यों बन रहा है, ये भी देख लो। अ, ये माइनस है, लैटिस एनर्जी खुद भी क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो बेसिकली ये पूरा फैक्टर क्या होगा, प्लस होगा आपका। तो अगर ये कम हो रहा है सिग्निफिकेंटली और ये ज्यादा है उसके मुकाबले में, तो जाहिर सी बात है जब ये ज्यादा होगा, दिस दिस इज गोइंग टू बी द मोर वन कंपेयर टू दिस वन, तो ये पॉजिटिव होगा, मोर पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव हो जाएगा। और मैंने इसी पूरी स्टोरी को बहुत सिंपल वर्ड्स में कुछ इस तरह से करके दिया था, और मैंने यहाँ लिखा था कि जनाब होता क्या है, होता ये है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए डिकम्पोजिशन ईजियर होती है, बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा। बेरियम कार्बोनेट में चार्ज डेंसिटी कम होती है, डिकम्पोजिशन मुश्किल से होती है, टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसका मतलब इस बॉन्ड इसको ब्रेक करने के लिए आई नीड मोर एनर्जी, मोर एंडोथर्मिक, इसके लिए लेस एनर्जी, लेस एंडोथर्मिक, राइट। सो हमने पहला स्टेटमेंट ये जज किया। अब हम दूसरा स्टेटमेंट भी जज करना चाहते हैं, और हम दूसरा स्टेटमेंट जज कुछ इस तरह से कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटायर इंफॉर्मेशन। मैं सेकंड पॉइंट कुछ इस तरह से लिख के दे सकता हूं आपको इसमें, डेल्टा एच lattice of metal oxide and metal carbonate decreases down the group as the size of oxide ion is smaller. So delta H lattice of metal oxide decreases more significantly than metal carbonate, as carbonate ion has a larger radius. Carbonate ion has a larger ionic radius. Okay. So that's the whole statement, whole information regarding this. I hope it makes sense to you. Next part of the question is part C. Potassium sulfite K2SO3 is used as food additive. The concentration of sulfite ion can be determined by titration.
using aqueous acidified magnate 7 ions. Okay. 250 cm cube solution contain 3.40 gram of impure potassium sulfide. जाहिर सी बात है मैंने 3.4 को 250 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस किया, फिर उस 250 cm क्यूब में से मैंने 25 cm क्यूब सोल्यूशन पोटेशियम सल्फाइड का निकाला और उसको टाइट्रेट किया मैंने 22.40 cm क्यूब ऑफ 0.025 मोल पर डीएम क्यूब एसिड MnO4 नेगेटिव से, एंड ऑब्वियसली एक रीडॉक्स रिएक्शन होगा। वो कह रहे हैं ऑल द सल्फाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड, नन ऑफ द अदर स्पीशीज इज इम्प्योर। ठीक है, टू हाफ इक्वेशंस एग्जामिनर ने दी हुई हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। सो आई नीड टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू आयन इलेक्ट्रॉन रूल। मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने की वजह से कैंसिल होंगे। आप जानते हैं कि ये 5 से मल्टीप्लाई होकर ये 10 हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 16 हो जाएंगे, तो 10 हाइड्रोजन आयंस कैन कैंसिल 16 हाइड्रोजन आयंस। सही है। सो यहाँ पर आपके पास 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर आपके पास 8 वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल भी कैंसिल हो सकते हैं यहाँ से। 5 वाटर मॉलिक्यूल कैन कैंसिल विद 8 water molecules. So the final equation for this reaction is going to be asking in this question. So मैं directly लिख लेता हूँ, I hope आप understand करें। 2MnO4 negative plus 5 SO3 2 negative. So 10 hydrogen ions cancel हो गए 16 में से, तो 6 hydrogen ions left, 5 water cancel हो चुके हैं, तो हो जाएगा 2Mn2 plus 5 sulfate ions plus 2 is 8, 5, 3 water molecule. So that's my balanced chemical equation. ठीक है, अब मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन ठीक बनाई, मुझे पता कैसे चलेगा, तो मैंने क्लास में बताया था कि भाई चार्ज बैलेंस होने चाहिए बोथ ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। सो चार्ज काउंट कर लेते हैं। दिस इज 5 times 2 10 minus 10 minus and 2 minus 12 minus 12 minus and 6 plus is 6 minus चार्ज है यहाँ पर। चेक करते हैं यहाँ पर चार्ज कितना है। ये है 5 times 2 10 minus and 2 times 2 4 plus, तो 4 plus and 10 minus becomes 6 minus, तो यहाँ भी 6 minus, यहाँ भी 6 minus, चार्ज बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस है। Now the next is calculate the percentage purity of the sample of K2Cr K2SO3। percentage purity का फॉर्मूला आपने O level केमिस्ट्री में पढ़ा है, mass of pure over mass of impure into 100। इसका फॉर्मूला लिखना बनता है, mass of pure over mass of impure into 100। तो मुझे मास ऑफ प्योर डिटरमिन करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है मैग्नेटाइंस की, इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ, एंड ऑब्वियसली वो कह रहे हैं शो योर वर्किंग, तो वर्किंग शो करके देनी है। मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव। सो अगर मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है हमारे पास 22.4 है, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.025 से, विच इज द कॉन्सेंट्रेशन, 1000 से डिवाइड करते हैं, so 22.4 into 0.025 divided by 1000 is going to be 5.6 into 10 to the power minus 4। ठीक है जी, ये मोल्स हो गया हमारे पास। अब जाहिर सी बात है इक्वेशन में MnO4 नेगेटिव के 2 मोल्स हैं और सल्फाइड आयन के
5 मोल्स हैं। तो अगर आपने 5.6 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ सल्फाइड आयंस ऑब्वियसली इन 25 cm क्यूब आपके पास आ जाएंगे। मैं मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ, सो हमारे पास है 1.4 इंटू 10⁻⁻3 मोल्स। ओके, ये 25 cm क्यूब है एंड ऑब्वियसली हमने 250 cm क्यूब में डिटरमिन किए थे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा कि 25 cm क्यूब हैज 1.4 इंटू 10⁻⁻3 मोल्स। सो अगर 250 सेंटीमीटर क्यूब है तो ऑब्वियसली 10 टाइम्स डाइल्यूशन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सल्फाइड is going to be 1.4 into 10⁻⁻2 moles। सही है। अब जाहिर सी बात है पोटेशियम सल्फाइड आपके पास ये होगा, अगर आप इसको आयोनाइज करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा सल्फाइड आयंस में और पोटेशियम आयंस में। हम सब जानते हैं कि ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। अगर आपने यहाँ से 1.4 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स कैलकुलेट किए तो यहाँ से भी मोल्स सेम हो जाएंगे, दैट इज 1.4 इंटू 10⁻⁻2। सो मेरे पास मोल्स टेक्निकली कितने आ गए पोटेशियम सल्फाइड के, सेम मोल्स आ जाएंगे। 1.4 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स। सो एम आर मुझे डिटरमिन करना है K2SO4 का। पोटेशियम का 39.1 होता है, इंटू 2 करेंगे, सल्फर इज 32.1 प्लस 16 टाइम्स 3 होगा, तो आई बिलीव यहाँ से हमारे पास एम आर आ जाएगा 158.3। तो मैं इन मोल्स को, इस मास को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास मास आ जाएगा which is going to be the mass of pure K2SO3 158.3 into 1.4 into 10⁻⁻2। सो हमारे पास आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो ये हो जाएगा दिस वन into 158.3, so it's going to be 2.216 ग्राम। परसेंटेज प्योरिटी डिटरमिन करनी है तो मास ऑफ प्योर मैंने डिटरमिन किया 2.2162, उसको डिवाइड कर दीजिए इम्प्योर मास से और इम्प्योर मास इज गिवन, कितना गिवन था इम्प्योर मास 3.40 ग्राम इंटू 100 कर दीजिए, so divided by 3.4 into 100, so it's going to be 65.18, so basically 65.2%, या लिख दीजिए 65.2%। That's my percentage purity. I hope it makes sense to you. So the last part of this question is potassium disulfide is another food additive. The disulfide ion S2O52 minus as the displayed formula shown. Okay, deduce the geometry or shape around the S alpha atom in this. Okay, sulfur आप सब जानते हैं belongs to group 16, so it has 6 valence electrons. Let's count them: 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने आपसे क्लास में कहा था A1 केमिस्ट्री में स्पेशली कि अगर मुझे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी हो, ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी हो, शेप फाइंड आउट करनी हो, एंगल फाइंड आउट करना हो, सो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है,
इसके अराउंड जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो काउंट करें। और मैंने ये भी कहा था साथ में कि जो डबल बॉन्ड होता है उसको हमेशा सिंगल बॉन्ड कंसिडर करेंगे। तो सल्फर के अराउंड टोटल सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 4। देयर इज नो लोन पेयर, तो टोटल इज गोइंग टू बी 4। मैं 4 लाइंस ड्रॉ करूंगा। दैट वाज माय शॉर्टकट। फर्स्ट वाली लाइन हमेशा s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, रिमेनिंग लाइन 3p ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3। सो व्हेनेवर वी हैव 4 single bond in a zero lone pair with sp3 hybridization, angle is going to be 109.5 degree with tetrahedral shape. So geometry around sulfur is tetrahedral. Okay, so that's the end of question number 1. Okay guys, let's start question number 2. State 2 typical chemical properties of a transition element. ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट एज अ कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये बहुत सारी टिपिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से कोई भी 2 लिख दीजिए। तो सबसे इजी है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। दे बिहेव्स एज अ कैटलिस्ट and they form colored compounds. Okay, aqueous solution of cobalt 2 salt. अच्छा जी, cobalt 2 salt contain the complex ion this, ठीक है। Define complex ion. An ion is formed when one or more dative bond is formed when one or more dative bond is formed between ligand and transition metal ion. Okay. Samples of aqueous cobalt 2 ions are reacted separately with an excess of aqueous ammonia, with an excess of concentrated HCl, and with an excess of aqueous sodium hydroxide, as shown in figure 1.9. That's what we have done in the class in extreme detail, right? So let me tell you, in this scheme, in this reaction scheme, what's happening actually. This is aqueous cobalt 2 ions. When we add excess aqueous ammonia, obviously displacement, we add ligand exchange reaction takes place, or ligand substitution reaction takes place. और जब ligand substitution reaction होगा तो जाहिर सी बात है आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, और कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ये होगा Cu, oh my goodness, cobalt है तो CO NH3 taken 6 and 2 plus, all right. And obviously इसका कलर क्या होगा? ब्राउन सॉल्यूशन, अगर आपको याद हो, ठीक। ओके, व्हेन दिस ऑब्वियसली ये भी लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन है, ये भी लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एंड ऑब्वियसली जो बी है आपके पास वो ये बनेगा COCl4 2 माइनस, और आप जानते हैं कि इसका हमेशा ब्लू सॉल्यूशन बनता है। When aqueous cobalt 2 ions reacted with excess NaOH, तो फिर हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा,
एंड बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन हमारे पास प्रोडक्ट ये बनेगी, कोबाल्ट H2O taken 4, OH taken 2, and this complex has no charge, which means this complex is neutral. हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, CO OH taken 2 dot 4H2O. So ये रिएक्शन स्कीम थी. अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब हम एक स्पीशीज फॉर्मूला ऑफ अ कोबाल्ट स्पीशीज फॉर्म ए, तो बेसिकली मैं ये उठा के लिख देता हूँ. ए में हमारे पास है कोबाल्ट NH3 taken 6 2 plus color and state of cobalt species form. तो कलर होगा बेटा हमारे पास ब्राउन. ठीक है, ब्राउन सॉल्यूशन इनफैक्ट. और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ligand exchange, also called ligand substitution reaction. बी में आपके पास कोबाल्ट है, CuCl4 and it is 2 minus, and again ये ब्लू सॉल्यूशन होगा आपके पास. इसको भी हम ligand substitution reaction कहेंगे. C is basically cobalt H2O taken 4, then OH taken 2, और इसको हम टू प्रेसिपिटेट्स कहते हैं. और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है which is also called acid base reaction. Okay, now in the next is explain what is meant by bidentate ligand, because ethane dioate ion is a bidentate ligand. By the way, एक चीज और याद रखिएगा, नो डाउट इथेन डायोएट बाइडेंटेट ligand है, बट इथेन डायोएट रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, याद रखिएगा ये बात. सही है, वी हैव डिस्कस दिस इन ऑर्गेनिक. अब बाइडेंटेट ligand क्या होते हैं, एक ऐसी स्पीशी that donates two lone pairs to the transition metal line so that two native bonds are formed. एक और बात, C2O42 माइनस का स्ट्रक्चर ये होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट एज स्टीरियोआइसोमर्स. जब एग्जामिनर ने कहा स्टीरियोआइसोमर, इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है एंड यकीनन होगा, और ऑप्टिकल भी हो सकता है एंड यकीनन होगा. ठीक है, सो यहां से बहुत सारे बन सकते हैं. हमारे पास C2O4 है, और C2O4 की 3 डायमेंशनल डायग्राम उसने बना के दी हुई है. वो कह रहा है 4 स्टीरियो आइसोमर्स बना के देने.
C2O4 2 माइनस को उसने इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया, और बाय द वे मैंने ये सिंबल आपको क्लास में भी बताया था। ओके, हमारे पास जो लाइगेंड्स हैं उसमें एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन, दो वाटर मॉलिक्यूल और एक बाइडेंटेड लाइगेंड है। सो आई नीड टू अरेंज देम अकॉर्डिंगली। मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट ये होगा कि मैं वाटर को इस जगह पे लिखूं, यहाँ पर भी लिखूं। ये मेरा सिस आइसोमर हो गया। यहाँ मैं ब्रोमीन कर देता हूँ और यहाँ मैं क्लोरीन लगा देता हूँ। ठीक है, दैट्स माई सिस आइसोमर। अब अगर मुझे ट्रांस करना है तो मैं यहाँ पर भी वाटर लगा देता हूँ, यहाँ पर भी वाटर लगा देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन और यहाँ हो जाएगा क्लोरीन। सो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सिस ट्रांस। एंड ऑब्वियसली इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स में -1 चार्ज है। इसका मतलब मुझे ब्रैकेट लगाकर -1 चार्ज भी मेंशन करना चाहिए उसी तौर पे। कह नहीं रहे, लेकिन हमें आंसर पूरा कंप्लीट देना चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा हुआ है ये, यानी इस तरह से लिखो, तो इसका मतलब मुझे ब्रैकेट लगा के -1 चार्ज मेंशन करना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, देखो ये सेम साइड पे हैं तो सिस, और ये डायगोनली अटैच्ड हो गए, ये ऑपोजिट हो गए एक दूसरे से ट्रांस। ठीक है, तो ये सिस ये ट्रांस। ऑप्टिकल भी हो सकता है। ऑप्टिकल के लिए हम क्या करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ अटैच किया, वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ अटैच किया। ठीक है, क्लोरीन को यहाँ अटैच किया, ब्रोमीन को यहाँ अटैच किया। अब हम क्या करेंगे, 180 डिग्री का अगर मैं इसको रोटेट करूं, सो ये वाटर एज इट इज और वाटर एज इट इज। जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, और यहाँ क्या आ जाएगा, क्लोरीन। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। फॉर इंस्टेंस इसका भी एक आइसोमर बन सकता है, और इसका आइसोमर कुछ इस तरह से बन सकता है कि आप ब्रोमीन को यहाँ लगा दीजिए और वाटर को यहाँ कर दीजिए, तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं बनाने की। जो सबसे इजीएस्ट वन है वो मैंने शेयर किया आपके साथ। तो इन दोनों में हो रहा है जनाब सिस ट्रांस। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, मिरर इमेजेस और ऑप्टिकल हो गई है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट हमें मालूम करना है। ओ माय गुडनेस। तो कोबाल्ट को हम एक्स ले लेते हैं, वाटर न्यूट्रल होता है, इग्नोर करें उसको। C2O4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, यहाँ लिखा हुआ है एग्जामिनर ने क्वेश्चन में। ब्रोमीन हैज -1 चार्ज, क्लोरीन हैज -1 चार्ज, ओवरऑल चार्ज इज -1। सो ये हो जाएगा x 3 4 -4 equals to -1, then x equals to +3. So oxidation state of cobalt in this complex ion is +3. And by the way, types of stereoisomerism, uh, optical and geometrical both. So that's the end of question number 2. So guys, let's start question number 3. Complete table 3.1 by placing one tick in each row to indicate the sign of each type of energy under standard condition. Bond energy is always positive, all right. And enthalpy change of atomization is always positive. Enthalpy change of formation can be positive or can be negative. Okay. Define standard enthalpy change of atomization. That's a simple definition. Enthalpy change occur
when 1 mole of gaseous atom is formed from its constituent elements in their standard states, under standard condition. Okay, show some energy changes. Okay, यहाँ हमें टेबल में कुछ एनर्जी चेंजेस दे दी हैं। यकीनन इसमें बॉन्ड एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हैं, आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, एटमाइजेशन एनर्जीज हैं। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस पार्ट। ओके, कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ सिल्वर ऑक्साइड यूजिंग रेलेवेंट डेटा फ्रॉम टेबल। यानी टेबल से मैंने डेटा लेना है और लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एनर्जी साइकिल हेल्पफुल रहेगी। शो योर वर्किंग। सो एनर्जी साइकिल के लिए we have gaseous silver ions, we have gaseous oxide ions, ये आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइंड होकर ये कन्वर्ट हो जाएंगे सिल्वर ऑक्साइड में। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ये सॉलिड है। दिस इज लैटिस एनर्जी गाइस। ओके, which we which we need to find out, and obviously यहाँ पर 2 सिल्वर हैं तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। ये हो जाएगा आपके पास सिल्वर एटम और ये हो जाएगा गैसियस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके Ag2O में कन्वर्ट होंगे। दैट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। एंड ऑब्वियसली ये आपका डेल्टा H1 होगा बिकॉज दिस डेल्टा H1 इंक्लूड्स वेरियस एंथैल्पी चेंजेस। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर मैं बनाऊं तो ये दोनों वैल्यूज प्लस होंगी, ये वैल्यू माइनस होगी, इक्वल्स टू 0 होगा। देन डेल्टा H, देन हम Le की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस Le minus delta HF equals to 0. I need to find out the value of Le. तो obviously हमारे पास हो जाएगा delta HF minus delta H1। और अब इस delta H1 के अंदर हमने वैल्यूज प्लग इन करनी है। Lattice energy equals to delta HF minus delta H1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वर सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर गैस में, तो इसका मतलब एटोमाइजेशन है सिल्वर की। सिल्वर हैज +1 चार्ज, इसका मतलब सिल्वर हैज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एंड ऑब्वियसली सिल्वर के 2 मोल्स, इसलिए एटोमाइजेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज वी हैव 2 सिल्वर एटम। सिमिलरली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिल्वर होगा एंड ऑब्वियसली मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से बिकॉज वी हैव 2 मोल्स। ये मॉलिक्यूल है, ऑब्वियसली कन्वर्ट हो रहा है गैसियस एटम में। तो एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन का एक ही आयन है, एक ही एटम है, तो इसलिए हम उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बट ऑब्वियसली इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन भी होगा और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन भी होगा। उसकी वजह ये है कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है 2-। ओके, सो लेट मी प्लग इन दीज वैल्यूज। सो लैटिस एनर्जी फाइंड आउट करनी है मैंने। डेल्टा HF ऑफ सिल्वर फ्लोराइड, बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा। सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड। सिल्वर ऑक्साइड की -31 है। ओके, then atomization of silver is +285 times 2 plus first ionization energy
of silver plus 731 times 2 plus एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन. तो मुझे बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, मैं इस बॉन्ड एनर्जी को हाफ कर लेता हूँ. तो 496 डिवाइडेड बाय 2 इज गोइंग टू बी, क्योंकि एटोमाइजेशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, राइट. सो डिवाइड करना जरूरी है, तो ये हो जाएगा 248. सो हम 248 लेंगे यहाँ पर. ऑक्सीजन हैज डबल बॉन्ड, इसलिए हम ये वैल्यू यूज कर रहे हैं, हम ये वाली वैल्यू यूज नहीं करेंगे, ठीक है. सो वो 248 first electron affinity of oxygen is -141 and 798. -141 and 798. So that's my delta H1. I need to find the value of lattice energy. Let me calculate. Okay, that's -2968 kilojoules per mole. Okay. So यहाँ लिख देते -2968 kilojoules per mole. In part D, suggests the trend in the magnitude of the lattice energy of silver compound. Explain your answer. Okay. वो भाई लैटिस एनर्जी का ट्रेंड पूछ रहे हैं हमसे, और लैटिस एनर्जी हमेशा किस पे डिपेंड करती है? चार्ज डेंसिटी पे. और चार्ज डेंसिटी को हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं? चार्ज ऑफ द आयन एंड साइज ऑफ द आयन से. आप सब लोग जानते हैं कि जो एग्जाम्पल हमें एग्जामिनर ने दी हुई है उसमें हमारे पास सबसे पहले है Ag2O, then Ag2S and then Ag2Se. सो इस पूरे स्ट्रैंड के अंदर सिल्वर के जो चार्ज है वो सेम है, कैटाइन सेम है, चार्ज सेम है, तो मैं कैटाइन को इग्नोर कर दूंगा. ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन के लिए एनाइन लूंगा. आप नोट करें एनाइन का चार्ज भी सेम है, क्योंकि ये तीनों के तीनों एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसलिए तीनों के ऊपर चार्ज भी सेम होगा. सो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयनिक रेडियस इंक्रीज होगा. सो ऑब्वियसली चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी. सो electrostatic attraction वीकर होगी. सो लैटिस एनर्जी लेस एक्सोथर्मिक होगी. सही है. तो लीस्ट एंडोथर्मिक जो है वो आपके पास Ag2Se होगा, उससे ज्यादा जो है वो Ag2S होगा, और सबसे ज्यादा जो है वो Ag2O होगा. और रीजन अगेन वो हमसे मांग रहे हैं, तो रीजन तो हम यही देंगे. रीजन हम देंगे down the group ionic radius increases,
charge density decreases, weak electrostatic attraction exists between cation and anion, and because of this आयनिक बॉन्ड्स जो हैं वो वीकर होना शुरू हो जाएंगे. Ionic bonds gets weaker and lattice energy is less exothermic. ठीक है जनाब. Okay, next is silver sulfite is sparingly soluble in water. Give an expression for the solubility product of silver sulfite. जो सिल्वर सल्फाइड का जो फॉर्मूला है वो एग्जामिनर ने आपको दिया हुआ है, which is Ag2SO3. अगर आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो ऑब्वियसली ये पार्शली डिसोसिएट होगा. क्योंकि ये पार्शली डिसोसिएट होता है इसलिए हमेशा सिल्वर आइंस बनेंगे और वो 2 मोल्स होंगे, और सल्फाइड आइंस होंगे, राइट, और वो 1 मोल बनेंगे. ये इक्वेशन ध्यान में रखिएगा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन मैं केएसपी का एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आइंस, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो पावर में चले जाते हैं तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे. एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आइंस. ओके, यूनिट तो नहीं मांग रहे, ठीक है. तो वो कह रहे हैं कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2SO3 एट 298 केल्विन. केएसपी गिवन है मुझे सिल्वर सल्फाइड की. ओके, केएसपी अगर मुझे गिवन है सिल्वर सल्फाइड की तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखूंगा, बल्कि मैं इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेता हूँ. यहाँ यहाँ लिख लेता हूँ. ठीक है, आप नोट करें. मुझे नहीं मालूम इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो मैं एक्स लूंगा, और क्योंकि इन दोनों के दरमियान 2:1 का रेशियो, तो अगर ये x है तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 2x. के एस पी का एक्सप्रेशन है concentration of silver ions power square, concentration of sulfite ions. KSP की वैल्यू गिवन है 1.50 into 10 to the power -14. सिल्वर आयन को मैंने कितना लिया हुआ है 2x. ये 2x का स्क्वायर, और ये क्या लिया हुआ है मैंने x. तो ये हो जाएगा 4x³ इक्वल्स टू 1.50 into 10 to the power -14. तो मैं यहाँ से x की वैल्यू डिटरमिन कर लेता हूँ. 1.55 into 10 to the power -5 मोल पर dm³. सही. और जाहिर सी बात है यहाँ पर 2x है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास 2x है. 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.55 into 10 to the power -5 से. सो इट्स गोइंग टू बी 3.11 एक्सपोनेंट -5. ये हमारा आंसर हो जाएगा. हम यहाँ लिखेंगे -5. ठीक है. Now the next is standard enthalpy change of solution of AgNO3 in water is this. Show how the feasibility of dissolving AgNO3 in water changes with temperature. Explain your answer. First of all, standard condition of the temperature must be 298 Kelvin. ठीक है. और दूसरी बात ये है कि आप नोट करें, जब भी हम किसी कंपाउंड को वाटर में प्लेस करते हैं तो सिस्टम जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है.
स्पॉन्टेनियस चेंज होता है बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। जब स्पॉन्टेनियस चेंज की वजह से एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो जाहिर सी बात है डेल्टा एस नॉट वैल्यू इज पॉजिटिव। ठीक है, ये याद रखना। तो अब देखो मेरे पास दो चीजें हो गई हैं, मेरे पास डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव आ गई है, मेरे पास डेल्टा एच की वैल्यू भी पॉजिटिव है। ठीक है, सो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा एच की वैल्यू हमें क्या मिली हुई है, प्लस, माइनस टी एज इट इज, डेल्टा एस नॉट की वैल्यू भी क्या है, प्लस। ये प्लस एज इट इज रहेगा, लेकिन जाहिर सी बात है ये माइनस प्लस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। नोट कीजिएगा, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो जाहिर सी बात है ये टी डेल्टा एस नॉट टर्म मोर नेगेटिव होगी। तो जब मोर नेगेटिव होगी तो जाहिर सी बात है डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन इज likely to proceed in the forward direction. So reaction is spontaneous. So मुझे ये सारी बातें लिख के देनी है एग्जामिनर को, इसी तरह से एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं वो से। So मैं बता देता हूँ कि क्या होगा। डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एस नॉट is also positive. This makes T delta S naught becomes more negative at higher temperature. So delta G naught becomes negative also, which is why reaction is spontaneous at high temperature. Okay, that's the end of question number, I believe, 3. Start question number 4. In aqueous solution, iron 3 ions reacts with iodide ions as shown. अच्छा, बिल्कुल रिएक्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो मेटल आयंस होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि Fe3+ आयंस जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, वेयर एज हेलाइड आयंस रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इसका मतलब जो आयोडाइड आयंस हैं वो आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब ये एक रीडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, a series of experiments is carried out using different concentration of Fe3+ and iodide as shown table 4.1. वो कह रहे हैं explain what is mean by the term overall order of reaction. Okay, overall order of reaction तो बहुत easy है। हम कहते हैं the power to which the concentration is raised in rate equation, तो अब हम बोलेंगे the sum of the power, क्योंकि टोटल में तो हम इंडिविजुअल ऑर्डर्स को ऐड कर देते ना, तो हम लिखेंगे द सम ऑफ द पावर टू विच द concentration
is raised in the rate equation. Okay. Now the next is use the data table 4.1 to deduce the order of reaction with respect to Fe3 plus and with respect to iodide ions. तो हम सबसे पहले बात करते हैं Fe3 plus की, और हम Fe3 plus के लिए एक्सपेरिमेंट 1 और 2 ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है. सो आप नोट करें, बहुत ऑब्वियस है कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 3 टाइम्स हो रही है. आई बिलीव आई एम सेइंग, देखिए 0.04 टाइम्स 3 इज गोइंग टू बी 0.12. तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जब आप आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में तो ये टाइम्स 3 हो रहा है. आप नोट करें जब यहाँ से यहाँ आप आ रहे हैं तो ये भी टाइम्स 3 हो रहा है. सो जब कंसंट्रेशन ट्रिपल्ड हो और इनिशियल रेट भी ट्रिपल्ड हो जाए देन इट मींस ऑर्डर इज फर्स्ट. तो हम यहाँ लिखेंगे for experiment 1 and 2, initial concentration is tripled and initial rate is also tripled, hence order is first. Okay, let's talk about iodide ions. And obviously iodide ions को handle करने के लिए मैं experiment 1 और 3 को consider कर लेता हूँ. अब नोट करें एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डबल हो रही है और द सेम साइड ये भी डबल हो रहा है Fe3 प्लस आइन. लेकिन ये दोनों के दोनों रेट जो हैं ये 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं. अगर मैं 2.64 इंटू 10⁻⁻4 को मल्टीप्लाई बाय 8 करूंगा तो ये हो जाएगा 2.11 इंटू 10⁻⁻3. सही है. इसका मतलब 8 टाइम्स हो रहे हैं. तो इसका मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल हो लेकिन इनिशियल रेट क्वाड्रपल हो जाए देन इट मींस इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सो 1 and 3 एक्सपेरिमेंट लूंगा मैं, तो बहुत ऑब्वियस है. फॉर एक्सपेरिमेंट 1 and 3, initial concentration of Fe3 plus is doubled. Initial concentration of iodide ions is also doubled. But initial rate is fourfold, hence it is second order reaction. Okay. Next part, use your answer to A2 to construct the rate equation for this reaction. So rate equation हो जाएगा rate equals to K concentration of Fe3 plus ions, which is first order reaction, concentration of iodide ion, which is second order reaction, because second order is the power is square. Next is use your answer to A3 and the data from the experiment 1 to calculate the rate constant for this reaction, include the units of K. तो मैं rate equation को दोबारा से लिख लेता हूँ. Rate equals to K
concentration of Fe3 plus concentration of iodide ions power square. एक्सपेरिमेंट 1 का जो रेट है वो आपके पास है 2.64 into 10 to the power minus 4. K we need to find out. Fe3 plus ion की concentration in experiment 1 is 0.04. Iodide has a concentration of 0.02. I need to make it, I need to do it square. तो मेरे पास ये K की वैल्यू आ जाएगी 16.5. I have to go for working units की working seems easy. रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स. के की यूनिट मुझे डिटरमिन करनी है. इसकी यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होती है. और आयोडाइड आयन का स्क्वायर है इसलिए यूनिट हो जाएगी मोल स्क्वायर डीएम माइनस 6. ये हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स और ये इक्वल्स टू के और ये हो जाएगा मोल क्यूब डीएम माइनस 9. तो यहां से के की यूनिट हो जाएगी मोल इनवर्स 2 डीएम 6 सेकंड इनवर्स. तो हम इस यूनिट को उठा के यहाँ लिख देते हैं. And the value is 16.5. Okay. Describe qualitatively the effect of an increase in temperature and the rate constant. As temperature increases, rate constant increases. Okay. Next. In aqueous solution, iodide ions reacts with acidified hydrogen peroxide. Again, ये आपका क्या है? Reducing agent. And ये आपका क्या है? Oxidizing agent. Again, it is a redox reaction. And surprisingly, हमने ये example जो है वो क्लास में भी डिस्कस की है. According to this, initial rate of reaction is found to be first order with respect to iodide and first order with respect to H2O2 and zero order with respect to hydrogen ion. जो जीरो ऑर्डर होता है उसको हम कभी भी रेट इक्वेशन में नहीं लिखते. तो मैं इसके लिए रेट इक्वेशन लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से. रेट इक्वल्स टू के concentration of H2O2 which is first order reaction and concentration of iodide ion which is also first order. तो ये रेट इक्वेशन हो जाएगी. इस रेट इक्वेशन में हम हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है. ठीक है. Figure 4.1 shows possible 4-step mechanism for this reaction. Okay. Suggest which of these 1, 2, 3 or 4 of this mechanism in the rate determining step. Rate determining step के लिए जरूरी है कि it must be consistent with the rate equation. क्योंकि हम हमेशा रेट इक्वेशन स्लो स्टेप रिएक्शन या रेट डिटरमिनिंग स्टेप रिएक्शन के लिए लिखते हैं. अब जाहिर सी बात है रेट इक्वेशन सजेस्ट कि भाई आयोडाइड H2O2 का फर्स्ट ऑर्डर और आयोडाइड आयन का भी फर्स्ट ऑर्डर. इसका मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप यानी स्लो स्टेप रिएक्शन में H2O2 और आयोडाइड दोनों होने चाहिए. तो इनमें से देखें कौन सा ऐसा स्टेप है जिसमें H2O2 और आयोडाइड आयन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं. वो स्टेप 1 है. इसका मतलब स्टेप 1 इज गोइंग टू बी द स्लो स्टेप रिएक्शन. Is the rate
step 1 is the rate determining step. Because both have, because both H2O2 and iodide ions have first order reaction. And so it is consistent with the rate equation. Also, explain your answer in terms of oxidation number. Why figure 4.1 involves redox? ओके, अब नोट करें आयोडाइड -1 है और यहाँ 0, इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है. यहाँ से तो नहीं जज कर पा रहा हूँ मैं कि हाइड्रोजन तो यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, ये भी. सो यहाँ पर -1 है और यहाँ +1 है. और स्टेप 3 में in terms of oxidation number. हाँ, यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये -1 है और ये यहाँ पर +1 होगा. H2O2 में ऑक्सीजन जो है वो -1 है और वाटर में -2. दैट्स ट्रिकी. फॉर स्टेप 1, H2O2 से ये कन्वर्ट हो रहा है H2O में. इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम -1 to -2. That's decrease in oxidation state or oxidation number. So obviously ये हो जाएगा आपका रिडक्शन. Whereas iodide ions are converting into IO negative. यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 to +1. That means increase in oxidation state. So when increase in oxidation state है तो इसका मतलब it undergoes oxidation. Suggest the role of HIO in this mechanism. Explain your reasoning. HIO का तो रोल बहुत इजी है. We have discussed this in class. कि देखो यहाँ पर आपके पास ये प्रोडक्ट है और यहाँ पर ये आपके पास रिएक्टेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल. जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे तो जाहिर सी बात है ये इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करेगा नहीं करेगा. तो आप यहाँ लिख सकते हैं HOI is present both in reactant and product, so it will cancel out and therefore
it is used as an intermediate. ओके, एक चीज और जरा देखिएगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, और ओ एच माइनस इससे कैंसिल होगा। सो रह क्या जाएगा वो लिखते हैं, H2O2 रह जाएगा। अगर आप नोट करें, आपके पास आयोडाइड आइंस 2 रह जाएंगे, ये आ जाएगा 2H, 2 आयोडाइड आइंस। आपके पास 2 हाइड्रोजन आइंस रह जाएंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2H आइंस एरो। आपके पास I2 रह जाएगा एक, और आपके पास ये 2 वाटर मॉलिक्यूल रह जाएंगे। आप नोट करें, ये वही इक्वेशन है जो मुझे एग्जामिनर ने ऊपर दी हुई है यहाँ, राइट? I hope it makes sense to you. That's the end of question number 4. So let's start question number 5. This belongs to organic and my favorite part of chem. Methyl benzene can undergo different reactions as shown in figure 5.1. This is methyl benzene. अगर हम इसको हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं in the presence of platinum, so obviously ये reduction होगा because addition of hydrogen हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये सारे के सारे पाई बॉन्ड्स रिमूव हो जाएंगे एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। Okay, so when you add bromine in the presence of UV light, obviously it's going to be free radical substitution reaction. Okay, और free radical substitution reaction always takes place on CH3। तो यहां से जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगी वो ये है, this is CH2Br। अगर मैं इस मिथाइल बेंजीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 व्हिच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट है, and obviously this reaction is called halogenation। सही, याद रखिएगा ये जो आपका CH3 ग्रुप है, दिस ग्रुप CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा, एंड सो यू विल गेट टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओके, तो पहली जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगी आपके पास, ये ऑर्थो प्रोडक्ट हो गई, और ये आपकी पैरा प्रोडक्ट हो जाएगी। And obviously para is greater than ortho। ठीक है, okay, part 1, we are done with part 1 because he is asking the structure of the possible organic products। Complete table 5.1, reaction 1, type of reaction, type of reaction is reduction, and addition of hydrogen is basically hydrogenation, तो आप hydrogenation भी लिख सकते हैं। reaction 2 is basically free radical substitution reaction। okay, all right, when benzene methyl benzene reacts with an electrophile, a substitution reaction occurs। okay, no addition reaction takes place under these conditions। Explain why no addition reaction takes place। okay, सब्स्टिट्यूशन तो इसलिए होती है ना क्योंकि बेंजीन के जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो कंटिन्यूस डीलोकलाइज्ड हो रहे होते हैं, और
एडिशन उस वक्त होती है जब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो रप्चर हो जाए या हम उसको खत्म कर दें। सो हम यहाँ देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन substitution reaction takes place due to the delocalization of pi bonds whereas in addition pi bonds of benzene cannot be delocalized, hence product is not delocalized. Okay, the reaction of methyl benzene with thionyl chloride, तो सॉरी थायोनाइल ब्रोमाइड। अच्छा, हमने A1 केमिस्ट्री में और A2 केमिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया SOCl2 का रिएक्शन, इसको हमने नाम दिया हुआ था थायोनाइल क्लोराइड का। एग्जामिनर ने क्या किया है, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन कर दिया, थायोनाइल ब्रोमाइड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ iron 3 bromide which acts as a catalyst. Okay, the mechanism of this reaction is similar to that of bromination of benzene. The first step of the mechanism generates SOBr plus electrophile as shown. Okay, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करता हूँ। हाउ मेनी कार्बन एटम्स वी हैव? 1 2 3 4 5 6 7 carbon atom. Okay, let's count hydrogen atom. 3 4 5 6 7 7 hydrogen atom. 4 5 6, let me count again. 3 4 5 6 7. Okay, 1 sulfur, 1 oxygen and 1 Br. All right, okay, 1 sulfur, 1 oxygen and 1 Br. SOBr2 and FeBr3 reacting together, converting into an electrophile. The reaction of methyl benzene with this electrophile ion is shown in figure 5.3. Complete the mechanism in figure 5.3. Include all relevant curly arrows, charges, organic intermediates, structures. Okay, that's easy. That's easy. ये pi bond इसके साथ reaction करेगा and as a result a pi complex is formed. और क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थो पोजीशन में बना के दिए, तो मैं pi complex की ऑर्थो प्रोडक्ट वाला ही लूंगा। हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ S सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन Br। जिस कार्बन के साथ आपने इलेक्ट्रोफाइल अटैच किया उसको छोड़ के बाकी तमाम कार्बन एटम्स को आप डॉटेड लाइन और पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कर दीजिए। दैट्स गोइंग टू बी योर पाई कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट इज कि ये बॉन्ड इनटू द रिंग शिफ्ट होगा सो दैट इस बेंजीन रिंग का पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाए
एट द सेम टाइम यहाँ से हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाएगा। सो यहाँ से हाइड्रोजन आयन रिमूव हो गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यही होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, उसकी जगह पे एक इलेक्ट्रोफाइल चला जाता है। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कोई सा भी हो सकता है, जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमेशा हाइड्रोजन आयन होता है। ओके, नेक्स्ट इज the reaction shown in figure 5.2 produces a small amount of byproduct with the molecular formula this. Okay, okay, इसका okay, so I need to find out the byproduct और फॉर्मूला ये दिया हुआ है। सो हमारे पास यहाँ कितने कार्बन एटम थे? लेट मी 7 कार्बन 7 हाइड्रोजन, राइट? यहाँ कार्बन डबल हो गए, 7 कार्बन 7 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 सल्फर एंड 1 ब्रोमीन। आप नोट करें, ये इनिशियली था और ये बाय प्रोडक्ट है। इस बाय प्रोडक्ट में ब्रोमीन नहीं है, लेकिन खास बात क्या है कि कार्बन भी डबल हो गए, सल्फर भी डबल हो गए। इसका मतलब इसमें 2 बेंजीन रिंग्स है। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन सकता है। मुझे लगता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन सकता है। ठीक है, ये SO है, इसको एज इट इज रखें। इसके साथ एक और बेंजीन आ जाएगा और इस बेंजीन के साथ भी एक मिथाइल ब्रांच। सो बेसिकली ये जो आपके पास प्रोडक्ट थी, इसको एग्जामिनर ने डबल करके लिखा है और ब्रोमीन रिमूव कर दिया। सही है, तो अब काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड दिस वन इज 14। तो 14 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 3 4 5 6 7, 7 and 3 10 11 12 13 14, 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन। सही है, तो बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स कर दिए उसने उसके। Acyl bromide can be synthesized by the reaction of carboxylic acid with SOBr2. Give an equation for the reaction between ethanoic acid and SOBr2। SOCl2 से करवाया, एग्जामिनर SOBr2 से करवा रहे हैं, तो इक्वेशन तो सेम ही बनेगी। माइनर सा एक डिफरेंस आएगा, इंस्टेड ऑफ HCl HBr बन जाएगा। सो HBr फॉर्म होगा, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। मैंने सल्फर डाइऑक्साइड बताया था, SO and O combine together to give SO2, H and Br combine together HBr, और OH की जगह पे एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी CH3 COBr, और इसको कहते हैं इथेनॉइल ब्रोमाइड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज suggest the relative ease of hydrolysis of acyl bromide, acyl chloride and alkyl chloride. Easiest to hydrolyze is acyl bromide, रीजन भी दे देते हैं साथ साथ। acyl bromide hydrolyzed most easily because of the weak carbon bromine bond, as bromine has larger atomic size। उससे कम जो है वो एसाइल क्लोराइड हो जाएगा। एसाइल क्लोराइड की भी रीजन देनी चाहिए हमें।
Hardest to hydrolyze is alkyl chloride. आई थिंक मैं मोस्ट और लीस्ट दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ये है कि ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगा, राइट। सो मैंने एसाइल ब्रोमाइड बता दिया। आप ये भी लिख सकते हैं कि एसाइल हैलाइड्स आर easier to hydrolyze easier to hydrolyze than alkyl chlorides because carbonyl carbon is highly electron deficient due to two more electronegative oxygen and halogen. Okay. In alkyl chloride, carbon chlorine bond is stronger because of the small atomic size of halogen, and halogen is basically chlorine, so simple atomic size of chlorine. और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है इस अल्काइल ग्रुप का, ठीक है। बिकॉज of the positive inductive effect of electron donating alkyl group. So that's the end of question number, I think, 5. Question number 6. Perindopril is a drug used to treat heart disease. Okay. What we can do is कि मैं इस drug का structure एक मर्तबा copy paste कर लूँ so that मुझे थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको apply करना, ठीक है। Now the first part is state the number of chiral carbon atoms present in one molecule of phenyltropyl. Okay, this one is first, second, third, oops, second, third, fourth, fifth. 5 chiral carbon atoms हैं. Suggest one benefit and one disadvantage of producing a drug such as perindopril as a single pure optical isomer. Benefit, क्योंकि ड्रग जो है वो सिंगल प्योर ऑप्टिकल आइसोमर होता है, इसके उसके साइड इफेक्ट्स मिनिमल होते हैं। 2 मार्क्स का है तो लेस साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। यूजली स्मॉलर डोज रिक्वायर्ड होती है, ये ड्रग बहुत इफेक्टिव होती है।
Usually smaller doses are needed. डिसएडवांटेज क्या होता है? एक्सपेंसिव होते हैं, यानी सिंगल प्योर ऑप्टिकल आइसोमर synthesis is expensive. लोअर यील्ड भी होती है ऑब्वियसली. नेम ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स इन पैरेंड्रोपल. भाई एक आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर है आपके पास अमाइड, फिर है आपके पास अमाइन, फिर है आपके पास एस्टर. सो कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड्स, एमाइन्स, and ester. Okay. A sample of parendropal is hydrolyzed with hot aqueous acid. Hydrolysis कर रहे हैं. Okay. Draw the structure of the three organic products of the complete acid hydrolysis of parendropal. Okay. तो ये वाला स्ट्रक्चर हम कॉपी करते हैं, इस स्ट्रक्चर को उठाकर यहाँ लिखते हैं. अब इस स्ट्रक्चर पे वर्किंग कर लेते हैं. ठीक है, हमने पहले ही बताया था आपको, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं. तो मैंने आपको क्लास में ये कहा था कि एस्टर का बॉन्ड ब्रेक होगा, अमाइड का बॉन्ड ब्रेक होगा. सही है. सो हम सब जानते हैं ये OH ऑफ वाटर हासिल करेगा, और ये H ऑफ वाटर. सिमिलरली ये हासिल करेगा H ऑफ वाटर, और ये हासिल करेगा OH ऑफ वाटर. सो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पहली प्रोडक्ट है मेरी CH3CH2OH, और क्योंकि स्केलेटल स्ट्रक्चर है तो आंसर भी हम स्केलेटल में ही देंगे. तो CH3CH2OH ये मेरी पहली प्रोडक्ट आ गई. उसके बाद हम इस प्रोडक्ट को देखेंगे. ये CO हासिल करेगा OH ऑफ वाटर. ये हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है. राइट. हम इसको एज इट इज कॉपी करते हैं. ये हो जाएगा आपके पास CONOH. देन ये स्ट्रक्चर है, then this one, then this one, then this one, then NH, ये CO है, और ये OH. और बाकी जो है वो ये प्रोडक्ट होगी ऑब्वियसली, ये प्रोडक्ट है बाकी, ये आपकी थर्ड प्रोडक्ट होगी. इसको भी हम एज इट इज कॉपी करते हैं जैसे वहां लिखा है. दिस इज नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन हासिल करेगा. ये 5 मेंबर्ड रिंग है बाय द वे. सही है. 1 2 3 4 5 6. और ये एक CO और ये OH.
So that's the end of question number 6. All right, guys, let's start question number 7. Um, Explain why phenol is brominated much more easily than benzene is brominated. Okay, so OH group is an orthopara directing group. All right, oxygen. Okay, आप इस तरह से लिख लीजिए, lone pair of oxygen is delocalized with the pi bond of the benzene ring. So electronic density on 2, 4, and 6 position increases. That is orthoparallel position are electron rich. Which means these orthoparallel position can polarize electrophile easily. Next is iodomonobromide. Iodine monobromide reacts with benzene in the presence of an AlBr3 catalyst. Obviously, a lowest catalyst hoga. Predict whether the organic product will be bromobenzene or iodobenzene. Consequently, हम सब जानते हैं कि iodobenzene would be the right answer. And why iodobenzene? क्योंकि iodine जो है वो less electronegative है, so it has slight positive charge. Bromine is more electronegative element, so it has a slight negative charge. And obviously, iodine will serve as an electrophile. और benzene के साथ electrophilic substitution reaction होती है, इसलिए iodobenzene is going to be the product under these circumstances. Okay. This is because iodine is less electronegative element. Than bromine. Okay. And therefore, iodine will act, or iodine is acting as an electrophile. With benzene. Part C,
Figure 7 point shows some reactions of phenol. Okay, अगर आप फिनोल को एक्सिस एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे तो इसको हैलोजिनेशन का नाम देंगे हम, and product is going to be 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, जिसके हमें वाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे. Okay, when phenol reacts with sodium, obviously redox reaction होगा, also called substitution reaction, and we'll get sodium phenoxide and hydrogen gas. फिनोल में हमने NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है, सो NO2 ग्रुप के लिए हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज कर लेंगे. ये रिएक्शन आरटीपीपी के ऊपर होता है, एंड दिस बेसिकली रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन. रिएक्शन 2 इज बेसिकली एजोडाई की फॉर्मेशन कर रहा है. दिस इज बेसिकली एजोडाई, और एजोडाई के लिए हम यूज करते हैं नाइट्रस एसिड, हम यूज करते हैं फिनाइल अमाइन एंड below 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. Okay, now the question is, give an equation for the reaction of phenol with sodium. So we need to make the balanced chemical equation. Just hold on a second. This is phenol. हम इसको रिएक्शन करवा लेते हैं सोडियम से. तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. सोडियम जो है वो इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस. ऑब्वियसली द इशू इज हाइड्रोजन चला जाएगा और उसकी जगह पे ये सोडियम आ जाएगा. इशू इज कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ से रिलीज तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हुआ है. तो इसका मतलब आई नीड टू मेक द बैलेंस्ड इक्वेशन. यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, और इसके साथ भी 2 आएगा. So that's our salt and that's hydrogen gas. Okay. Next is draw the structure of the organic product R form when phenol reacts with an excess of aqueous bromine. So 2,4,6 tribromo phenol मिलेगा हमें. क्योंकि OH is an orthopara directing group, it increases the electronic density on the second carbon, on the fourth carbon, and on the sixth carbon. So जो bromine है वो second पे भी attach होगा, fourth पे भी attach होगा, sixth पे भी attach होगा. This is bromine, this is bromine, and this is bromine. Okay. State the reagents and conditions for reaction 1 and reaction 2 in figure 7.1. Reaction 1 के लिए आपके पास है dilute nitric acid, and reaction 2 is basically azodite की formation है. तो nitrous acid फिनोल तो है, ये फिनाइल अमाइन होगा. This is going to be phenylamine. And ultimately फिर ये phenylamine जो है वो डाइजोनियमाइन में कन्वर्ट होगा. फिर वो डाइजोनियमाइन इस फिनोल से रिएक्शन करके ये बनाएगा. तो हम यहाँ लिख सकते हैं nitrous acid and
phenylamine. In some cases, you can write benzene diazoniamine. ये याद रखिएगा कि बेंजीन डाइजोनियामाइन बनता ही उसी वक्त है जब फिनाइलमाइन स्टाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेगा. सो दीज आर द टू की रिएजेंट्स मेरी नजर में. बट समटाइम्स एग्जामिनर बेंजीन डाइजोनियामाइन भी लिख सकते हैं. एंड टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है. ठीक है. So that's the end of question number 7, guys. All right, Gene, let's start question number 8. Describe the difference in reactivity between chloroethane and chlorobenzene with OH minus. Explain your answer. First of all, याद रखिएगा ये बात कि ये जो क्लोरोईथेन है आपके पास, ये बेसिकली हैलोजन एल्केन है. ये आपका अल्काइल हैलाइड है. और ये जो क्लोरोबेंजीन है आपका, ये एक्चुअली एराइल हैलाइड है, which is also called aromatic alkyl halide. And we have discussed about this. We have discussed the reactivity about these two. All right. Obviously, chlorobenzene जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन नहीं करता. और वो लेस रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि जो क्लोरीन का लोन पेयर होता है वो बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन हैलोजन बॉन्ड हाईली स्टेबल हो जाता है, अनरिएक्टिव हो जाता है. So let me write this. Chlorobenzene is less reactive than chloroethane. This is because lone pair of chlorine is delocalized with the pi bond of the benzene ring so due to partial double bond carbon chlorine bond, it is highly it is unreactive and inert. Compound T with a molecular formula is useful in synthetic intermediate. Figure 8.1 shows some reactions of T. Okay, आप नोट करें यहाँ पर रिएक्शन है हमारे पास जिसमें हम एक्सेस NaOH यूज कर रहे हैं अंडर हीट, और हमारे पास यहाँ एस्टर भी और हमारे पास यहाँ अल्काइल हैलाइड भी है. तो रिएक्शन यहाँ भी होगा, रिएक्शन यहाँ भी होगा. Sorry. This oxygen will get hydrogen or water, and this CO will get OH or water. And obviously ये OH से substitute हो जाएगा because of nucleophilic substitution reaction. So इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोडक्ट आपको यहां से मिलेगी, और क्योंकि ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है तो हम स्केलेटल स्ट्रक्चर लिख देते हैं, दैट इज इथेनॉल. और दूसरी प्रोडक्ट जो है वो हमें यहां से मिलेगी इस पूरे फ्रेगमेंट से. सो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं. क्लोरीन की जगह OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बिकॉज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एज इट इज, एंड दिस CO, और ये OH और वाटर हासिल करेगा, विल टर्न टू OH. ओके.
आई होप इट मेक सेंस टू यू। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड सिंस द मीडियम इज एल्कलाइन व्हिच मींस इन दोनों के दरमियान एसिड बेस रिएक्शन होगा, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द सॉल्ट। तो ये हो जाएगा O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन वन। रिएक्शन वन में क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा सेगमेंट एज इट इज मैंने कॉपी किया है, लेकिन इस Cl की जगह पर Cn आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप वन के अंदर हमने सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करवाया है इन इथेनॉल अंडर रिफ्लक्स, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है गाइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म से एस एन रिएक्शन कह सकते हैं। बाय द वे इसको हम कहेंगे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ओके, फिर उसके बाद हमने इसको कंपाउंड को रिएक्शन करवाया एक से ZCl अंडर हीट, तो ये एस्टर फिर ब्रेक होगा। अगेन ये हाइड्रोजन ऑफ वाटर हासिल कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है इथेनॉल में। ये बनाया एग्जामिनर ने इथेनॉल, ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये हासिल करेगा OH ऑफ वाटर, एंड अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगा COH में। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो CN है ये इस एसिड हाइड्रोलिसिस की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो ये COOH आ गया, CN की वजह से ये कन्वर्जन कर ली हमने। ये CH2 एज इट इज, ये एज इट इज, ये CO, एंड दिस इज गोइंग टू बी OH। ओके, अब आप चाहें तो इस COOH को स्केलेटल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर स्केलेटल है, तो ये भी स्केलेटल लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं COOH। ओके, सो ये CN एसिड हाइड्रोलिसिस की वजह से COOH में कन्वर्ट होगा। एस्टर जो है वो एसिड हाइड्रोलिसिस की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट इज कि स्टेप टू में ये कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है इस प्रोडक्ट में। लेट्स काउंट द कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6। So we have 6 carbon, तो कार्बन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। How many oxygen atom? 2. Oxygen will remain as. How many nitrogen atom? 1. Now the count करो हाइड्रोजन, 3 + 2 5 7 and 10, यहाँ 13 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स उसी वक्त इंक्रीज होंगे जब मैं हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करवाऊंगा in the presence of nickel catalyst, and the reaction is going to be reduction here. This is called synthetic route, right? पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। ये सिर्फ CN की जगह पर क्या आ जाएगा? CH2। ये देखिए जो स्ट्रक्चर है पहले तो हम वो बना लेते हैं। ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये आ गया। अब ये जो CN है आपके पास, ये कन्वर्ट हो रहा है CH2 में, तो ये कन्वर्ट होगा CH2 एंड NH2 में। so ये जो आपका CN है ये कन्वर्ट हो गया इस CH2 NH2 में। CH2 ये इस तरह से बनेगा, होल्ड ऑन, ये बन गया NH2, सही है। तो ये पूरा का पूरा आ गया CN की जगह पे। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। गिव द सिस्टमैटिक नेम फॉर टी। ओके, सिस्टमैटिक नेम फॉर टी क्या है? टी 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 टी। ओके, सो ये हमारे पास है जनाब क्लोरीन। सो 1 2 3 4 5। ओके, इसको हम इथाइल कहते हैं, ठीक। और उसके बाद हम इसको फर्स्ट कार्बन, सेकेंड और थर्ड कार्बन कहते हैं। तो ये थर्ड कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम ये हो जाएगा 3 क्लोरो। और 3 कार्बन एटम का इसको कहते हैं प्रोपानोइड। तो 3 कार्बन एटम के प्रोपानोइड को हम कहेंगे 3 क्लोरो प्रोपानोइड।
Okay. Draw the structure of W, X, Y, and Z in figure 8.1. I did that. State the reagents and condition for step 1 and step 2. Step 1 में क्या हो रहा है? NaCN ethanol reflux. और स्टेप 2 के अंदर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है. So hydrogen gas in the presence of nickel catalyst and under heat. Okay. Part C. Okay, the proton NMR spectrum of compound T in CdCl3 as shown. Okay. चलो तो पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको. चलो सॉल्व करते हैं. इस CH3 के नेबर में जो कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये आपको देगा ट्रिपलेट. एंड ऑब्वियसली इस CH2 के नेबर में जो कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये आपको देगा क्वाड्रेट. एंड ऑब्वियसली ये अल्काइल नेक्स्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसलिए इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज 3.2 से 4.0 डेल्टा होगी. ये अल्काइल ग्रुप है, इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज 0.9 से 1.7 डेल्टा होगी. ये आपके पास CH2 है, इसके नेबर में 2 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट देगा आपको. एंड ऑब्वियसली ये CH2 है, ये कार्बोनाइल के साथ अटैच है, इसलिए ये होगा अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, और इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज होगी 2.2 से 3.0 डेल्टा. ये जो CH2 है ये भी आपको ट्रिपलेट देगा, क्योंकि इसके नेबर में भी 2 प्रोटॉन्स हैं, और क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, इसलिए हम इसको रखेंगे CH2Cl. तो CH2Cl अगर आपके पास है तो उसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज 3.2 से 4.0. ओके. ऑलराइट, ये हमने सॉल्व किया है, वर्किंग कर लिए. आप नोट करें हमारे पास 1 ट्रिपलेट, सेकंड ट्रिपलेट, थर्ड ट्रिपलेट, तो 3 ट्रिपलेट्स आ रही हैं हमारे पास. इनफैक्ट 4 ट्रिपलेट्स आ रही हैं. 1 2 3. 4 ट्रिपलेट्स कैसे हैं? ओ हाँ, 3 ट्रिपलेट्स हैं. 1 2 3, 3 ट्रिपलेट्स हैं, और 1 क्वाड्रेट है, ये 1 क्वाड्रेट. ओके, तो चलें आगे चलते हैं. एक्सप्लेन व्हाई CdCl3 is used as a solvent instead of CHCl3 for the proton NMR spectrum, because deuterium cannot show absorption in radio frequency region. Because deuterium cannot show absorption radio frequency region. Complete table 8.2 for the proton NMR spectrum of T. ओके, तो 1.2 के ऊपर आपके पास CH3 है. स्प्लिटिंग पैटर्न इसका ट्रिपलेट था, और 3 प्रोटॉन्स की वजह से ये आ रहा था. ठीक है. फिर 2.8 है आपके पास, तो 2.8 के ऊपर हमारे पास ये है, ट्रिपलेट है. अल्काइल नेक्स्ट टू मोर, अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, और ट्रिपलेट दी थी इसने भी, और 2 प्रोटॉन्स की वजह से आई. ठीक है. फिर 3.7 पे, 3.7 पे ये भी है हमारे पास, और 3.7 पे ये भी, ये दोनों है, पर 3.7 पे ट्रिपलेट है, तो इसका मतलब हम ये लेंगे, तो अल्काइल नेक्स्ट टू CH2Cl. ठीक है जी, ये भी ट्रिपलेट है हमारे पास,
और ये भी 2 प्रोटॉन्स की वजह से। और 3.9 के ऊपर यकीनन क्वाड्रेट है हमारे पास, जिसमें हम अल्काइल नेक्स्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन लेंगे, जिसको हमने यहाँ लिखा था CH2O। ओके, सो हम यहाँ लिखेंगे CH2O, ये होगा हमारा क्वाड्रेट, और ये किसकी वजह से आया है? 2 प्रोटॉन्स की वजह से। एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग पैटर्न फॉर द पीक एट 3.9, यानी क्वाड्रेट क्यों आ रही है? क्वाड्रेट इसलिए आ रही है बिकॉज नेबर में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, बिकॉज neighbor carbon has 3 hydrogen atoms. Okay, so that's the end of question number 8. All right, guys, let's start question number 9. That's the last question. Define standard cell potential. That's easy. The potential difference between the two half cells measured under standard condition is called standard cell potential. An electrochemical cell, a cell which converts chemical energy into electrical energy. The electrochemical cell converts chemical energy into electrical energy. Is set up to measure E0 cell of a cell consisting of an iron half cell and chlorine half cell. Draw a label diagram of this electrochemical cell. Include all necessary substances. It's not necessary to state conditions. Okay. So ये हमारा voltmeter हो गया. ये हमारी platinum strip हो गई. ये हमारा beaker हो गया. Then ये हो गया आपके पास. और ये क्लोरीन हाफ सेल हो गया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया. ठीक है, लेट्स लेबल दिस. ये आपका वोल्ट मीटर है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली द हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर. हम यहाँ से क्लोरीन गैस को इंट्रोड्यूस करेंगे
1 atm pressure under 298 Kelvin. Hold on a second. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, and obviously this contain chloride ions, और क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होगी। ये आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया, ये आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हो गया। मैंने आपसे क्लास में कहा था कि whenever we have ions and gases, platinum is used as an electrode. Same here, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ओनली आइंस। Fe3 प्लस आइंस का 1 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन होगा, Fe2 प्लस आइन का भी 1 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन होगा। So only ions are involved, platinum is used as electron. Gas and ions are involved, platinum is used as an electrode. Okay, ये हमारी लेवल डायग्राम हो गई। Next is basically the cell reaction for the electrochemical cell in B is shown. Okay, E naught cell of this is given. Calculate G naught in kilojoules per mole for this cell reaction. Okay, G naught calculate करना चाहते हैं हम, तो G naught तो calculate हो जाएगा बहुत easily, लेकिन उससे पहले मुझे ऑब्वियसली ये डिसाइड करना है कि डेल्टा G naught के लिए मैं एक्सप्रेशन कौन सा यूज करूंगा। तो मैंने क्लास में डिस्कस किया था, हम यूज करेंगे -NFE0 cell. So for this reaction I need to find out the number of moles. तो हम इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, क्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड, क्योंकि यहाँ 2 क्लोरीन है इसलिए मैं यहाँ पर 2 रखूंगा। सिंस वी हैव 2 माइनस चार्ज है तो चार्ज बैलेंस हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूंगा। सिमिलरली वी हैव Fe2 प्लस आइंस कन्वर्टिंग इनटू Fe3 प्लस एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दिया। मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिलेशन के बाद मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन एग्जैक्टली वही होगी जो मुझे एग्जामिनर ने दी हुई है। Cl2 plus 2 Fe2 plus arrow 2 Fe3 plus 2 Cl minus, and this whole scenario shows कि क्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, आयरन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। Faraday constant की वैल्यू is fixed which is 96500। E naught cell की वैल्यू is given which is plus 0.59 वोल्ट। तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई हो रही है तो 0.59 ले लेंगे, बिकॉज 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल, राइट। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 113870 जूल्स मोल इनवर्स, राइट। और ये माइनस का साइन ऐसे है। अब इसको क्लो जूल में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि डेल्टा G नॉट जो है वो हमेशा क्लो जूल में होती है, तो ये हो जाएगा -114 किलो जूल्स पर मोल। तो यहाँ लिख देते हैं -114, ठीक है। नेक्स्ट इज another experiment is set up using the same electrochemical cell. In this experiment, iron 2 ion की concentration is 0.15. That's a very powerful statement, important statement. All other concentration remains at their standard state. इसका मतलब ये हुआ कि जो Fe3 plus ion की concentration है that will remain 1 mole per dm cube. Nernst equation is shown. Okay, ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और ये बेसिकली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है।
Now, using the Nernst equation to calculate the electrode potential for iron half cell in this experiment. Okay, that's tricky. तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू E नॉट, और आयरन हाफ सेल की जो E नॉट की वैल्यू है वो 0.77 है, तो हम उसको लिखते हैं 0.77। ऑब्वियसली इस हाफ सेल को अगर मैं देखूं तो ये होगा Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन एरो Fe2 प्लस। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 1, तो ये हो जाएगा प्लस 0.059 ओवर 1 लॉग ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज आयरन 3 आयंस 1 मोल पर डीएम क्यूब लेंगे, रिड्यूस स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन 1 के बजाय 0.15 कर दिए, तो यहां से आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी प्लस 0.82 वोल्ट। ओके, use your answer to D1 to calculate E cell for this electrochemical cell। E cell, E cell निकालना चाहता हूं। E cell निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा E cell equals to E right minus E left according to my lecture। ठीक है, आप इसको कैथोड एनोड भी कह सकते हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ओके ओके, मुझे जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि देखिए ये जो ई लेफ्ट है ये बेसिकली आपका Fe3 प्लस Fe2 प्लस सिस्टम है, और इसकी एनर्जी मुझे मिल गई है विच इज, सॉरी इसकी वैल्यू मुझे मिल गई है विच इज 0.82। ई सेल मुझे कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं ई राइट किसका होगा, ऑब्वियसली क्लोरीन का होगा, और क्लोरीन का जो हाफ सेल है उसकी वैल्यू इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं भी गिवन नहीं है, और हमें वैल्यू डेटा बुकलेट से मिली भी नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो मैं इस हाफ सेल के लिए वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। सो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, मैं Cl2 ले रहा हूं, मैं 2Fe2 प्लस लूंगा एरो 2Fe3 प्लस प्लस 2Cl माइनस, इसकी वैल्यू थी E नॉट सेल इक्वल्स टू E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। E नॉट सेल हमने डिटरमिन कर ली थी, वो हमें यहाँ दी गई थी 0.59 वोल्ट, हम इसको रखेंगे यहाँ। E नॉट राइट में मोर पॉजिटिव ऐसी भी वैल्यू आती है विच इज क्लोरीन। ठीक है, और E नॉट लेफ्ट के अंदर आयरन की वैल्यू आएगी, और आयरन की वैल्यू ये दी हुई है हमें 0.77। तो यहां से मैं E नॉट राइट फॉर क्लोरीन क्लोराइड सेल मालूम कर सकता हूं विच इज गोइंग टू बी प्लस 1.36 वोल्ट। अब मैं इस वैल्यू को उठाकर इसमें प्लग इन करूंगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1.36 वोल्ट माइनस ई नॉट लेफ्ट आपने कितना निकाला है प्लस 0.82 वोल्ट, ये रही है वैल्यू यहाँ रखी हमने। तो यहाँ से ई सेल आ जाएगा आपके पास प्लस 0.54 वोल्ट। सो बेसिकली आपका आंसर होगा प्लस 0.54 वोल्ट। ओके, that's the end of this paper. Thank you very much, guys.